یہ بھی کل سے شروع ہے، وہ بھی کل سے، یعنی 3 کل والی صورتیں ہیں جو آخر کی آیات صورتیں ہیں یہ. تو آج ہم غور کریں گے کہ اس صورت کا نام کیا ہے، اس کو کیوں سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا کیا ترجمہ ہے، اور آج کے دور میں اس صورت کی کتنی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہم اخلاص کی طرف آئیں گے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں. اخلاص کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ خلصہ سے نا، یہ لفظ. اب اس لفظ کو اگر ہم تھوڑا سا وہ کریں گے تو اس کے ساتھ میم لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اور اگر الف سے کریں گے تو یہ اخلاص ہو جائے گا. اور اگر لام سے لگیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خلوص. اور ایک اور بھی آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم یہ لگا دیں گے تخلص. اور ایک اور جو بڑا اہم لفظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے خالص. کیا معنی ہے اس کا؟ خالص کیا ہوتا ہے؟ پیور، بالکل ملاوٹ سے پاک. تو یہ صورت جو ہے شرک کے ہر شائبے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جس زاویہ نظر سے دیکھیں گے اس کو شرک سے ہم دور رکھیں گے. اس لیے اس کا اخلاص ہے. اس کا ایک نام صورت التوحید بھی ہے کہ وحدانیت کی سب سے بڑی اچھی صورت یہی ہے. اب اس کی اہمیت افادیت اپنی جگہ ہے، لیکن آج ہم دیکھیں ترجمہ کیا ہے کہ کل سے شروع ہوتا ہے. کل کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل جو ہے یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے، قول سے. ہر لفظ کے 3 حروف ہوں گے. جس طرح کل کا کیا ہوگا؟ قول ہوگا. قم کا کیا ہوگا؟ قوم ہوگا. سوم کا اسی طرح. تو اب اگر ہم اس طرح لکھیں گے قوم، ان میں ان 2 الفاظ میں کون سا کلمہ ہے جو کامن ہے؟ واو. واو ہے نا. تو واو کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو واو کو ہٹانے سے کیا، اس طرح اگر ہم سواد لگا دیں گے نا، فرض کہ آپ اس میں کنفیوز ہو گئے، عقاب بھی تو کامن ہے، لیکن سواد میں ان تینوں میں کامن کون سا ہے؟ واو ہے. اگر واو کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اور اگر اس کو ہم یہ فاعل وزن پہ لائیں گے تو قائل ہو جائے گا. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ قائم ہو جائے گا. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ صائم. یعنی یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. اس طرح اگر میں اس کو کیا لگوں، اس کو کیا کہوں گا، تو یہ جب کاف لام اس ہوگا یہ امپیریٹو ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حکم. حکم یعنی جس طرح میں کہوں کل کہو، لیکن یہ مردوں سے. لڑکی سے میں کہوں گا کل نہیں کہوں گا، کلی. کیا ہوگا؟ کلی. اس طرح یہ ہوگا لڑکی کے لیے، لیکن یہ مرد کے لیے کل کہو. لیکن جب یہ جمع کی صیغے میں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ لو. اس طرح ہو جائے گا. یہ سب کہو. اس کے ساتھ کیا لگے؟ لام کے ساتھ کیا لگے؟ واو الف. واو الف جب آ جائے گا کسی لفظ کے آخر میں، یا نون آ جائے گا یا واو نون آ جائے گا، تو یہ جمع مذکر کے لیے ہوگا سارا. اور قرآن مجید میں ہر لفظ کے آخر میں تذکروا یا ایھا الذین آمنوا، ان الذین، اس طرح یا، تو یہ نون آئے گا، واو الف آئے گا. تو جب بھی آ جائے گا تو آپ اس کو پلورل میں کریں گے، لیکن اس کو فیمیل کے لیے نہیں، میل کے. ٹھیک ہے. یہ ایک ترجمہ جو بتانا مضبوط تھا. لیکن اس کے بعد ہم کل کے بعد اگر کہیں کل کے معنی ہوگا کہو. تو اب ہم اس کا ترجمہ آگے کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. اچھا کوئی بات. جی کوئی بات. جی ڈاکٹر صاحب سے. جی
जी 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 मैं समझ गया। तो उसके वो जो मेडिसन है ना वो हमारे पास है। तो आप कहाँ रहते हैं? अच्छा गुलिस्तान जो में। तो मैं आयशा मंजिल पे हूँ। तालीमी बाग देखा होगा आपने? तो तालीमी बाग पे आकर के R55 ब्लॉक 14, हाँ तालीम बाग के गेट पे आएंगे ना, तो उस गली में हमारा 5वां मकान है। तो आप वहीं आकर के मुझे मिस कॉल करेंगे, लेकिन ये है कि कल आ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अब तो मैं घर से निकला हूँ। बस ठीक है। तो ठीक है, ये तकरीबन जो आपने दवाई बताई है ये ज़्यादा 500-600 की होगी। ठीक। अच्छा जी, तो हम कहें इसका तर्जमा क्या करेंगे? कुल के माने कह दीजिए, कहो, ठीक है। लेकिन अगर हम अदब में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? कह दीजिए, ठीक है। अब ये बात जब मशवरा हो जाता है ना कि फर्ज के हमारा आपस में मशवरा हो गया कि भाई आप तो हर एक को ऐलान कर दो, बता दो कि अब ये काम होने वाला है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब सब कुछ हो गया, अब सबको ये बता दो, आखिरी वाने ये कर दो कि हुआ। हुआ के माने क्या है? ये वाव को इधर लाएं, वाव, और हा को इधर लाएं तो क्या होगा? वो। यानी वाव को इधर करें, हा को इधर करें, वाव। तो ये जो है ये हुआ है, देखें ये, और इसकी मुअन्नस जो है वो क्या है? हिया है। अगर ये ही है तो ये क्या होगा? ये शी हो जाएगा। इन दोनों का जो दो है, तस्निया है, वो क्या है? वो हुमा है। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। और इसकी मुज़क्कर की जमा हुम होगा या हिम होगा, लेकिन मुअन्नस की जमा क्या होगी? हुन्ना होगा, ठीक है। यानी ही की जमा क्या होगा? हिम या हुम, और हिया की जमा हुन्ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा, इसको बाद औक़ात हू की को हम मुख्तसर करते हैं, इस तरह लिखते हैं हू। बाद औक़ात इस हा को इसके ऊपर खड़ा ज़बर लगाकर या इसके साथ अलिफ लगाकर ये लिखते हैं। मिसाल के तौर मैं ये कहूँगा कलमुहू, मैं कहूँगा कलमु, ये देखिए मैं इस तरह लिखता हूँ कलमुहू। तो मैं ये कहूँगा हैज़ पेन, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये कहूँगा कलमु हाँ, तो ये क्या? कलमु हाँ, तो मैं क्या होगा? हार पेन, क्या हो जाएगा? ये किसकी तरफ हो जाएगा? तो आप इसको हम और प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। लेकिन अगर ये दो हो जाएं तो फिर हम ये इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? जिस तरह हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अगर मैं ये कहूँगा ये कलम दो के लिए तो मैं कहूँगा लहुमा, ठीक है। कलम हुमा, दो का कलम। लेकिन अगर मैं सब की तरफ इशारा करूँगा कि कलम, इन सब का कलम, तो मैं कहूँगा कलम हुन्ना। लेकिन मर्द होंगे तो मैं क्या कहूँगा? हुम, क्या कहूँगा? कलम हुम। इसको गौर से देख लें पहले, देखें कलम हुन्ना किसके लिए होगा? किन के लिए? फीमेल के लिए। और कलम हुम किसका होगा? मेल के लिए। शाबाश, ये याद हो गया आपको? अगर मैं ये कहूँगा आइनु हु, आइनु हु, उसकी आँख, तो किसकी तरफ मैंने कह दिया? अगर मैं कहा आइनु हा, यदु हु, यदु हा, यदु हुमा, उन दो का मेल फीमेल दोनों। अगर मैं ये कहूँ यदु हुम, उन सब का हा, और यदु हुन्ना, समझ गए बात? यानी आप इस बात को समझ गए कि ये जो है ये हुआ वो के लिए, और हिया हमारे यहाँ वो मर्द के लिए भी वो है,
اور عورت کے لیے بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ مرد کی طرف اشارہ ہے عورت ہے، لیکن عربی میں ہر لفظ کو علیحدہ یعنی اس کا پروناؤن موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں، کہہ دیجئے وہ اللہ۔ اچھا یہ اگر تھوڑا سا میں مٹا دوں، آپ نے نوٹ کر لیا؟ نہیں کیا بات؟ تو اب جلدی نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اللہ کا نام جو ہے وہ کیسے آتا ہے۔ اچھا، اگر ہم کہیں لکھیں گے نا کتابن، دیکھیں یہ لفظ ہے کتابن، یہ بعض اوقات آئے گا کتابن۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں کہیں با کے اوپر دو پیش ہے، کہیں دو زیر ہے، کہیں یہ آئے گا کتابن۔ جب بن آئے گا تو اس کے ساتھ الف لگ جائے گا۔ اس کو غور سے دیکھیں، مثلا اگر میں یہاں کا قلمن، 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 تو من کے ساتھ کیا آئے گا؟ الف لگ جائے گا۔ اسی طرح اور کوئی چیز ہے، عینن، 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 جمیعن، جمیعن جب لکھوں گا تو کیا سے لکھوں گا؟ اس کے ساتھ الف لگ۔ جب ایسے آ جائیں گے تو آپ اس کے یہ کامن کہلائے گا۔ کیا ہوگا؟ کامن ہوگا، کوئی ایک۔ اس کا ترجمہ میں کہوں گا اے بک۔ اب آپ کو پتہ نہیں چلے کون سی بک، لیکن میں اس کو اگر ال لگا دوں گا، ال، تو یہ ہو جائے گا الکتاب، یہ پیش ہو جائے گا، یہ دو زبر دو زیر سب گر جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ الکتاب، تو ترجمہ ہوگا دی بک۔ ایک ہی جگہ کیا ہو گیا؟ یعنی وہ کامن ہو گیا، یہ پراپر ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کہ آپ کسی بھی اس طرح کے ورڈ کو پراپر میں چینج کریں گے تو آپ کس کو کیا لگائیں گے؟ ال۔ اسی طرح یہ الہن ہے، الہن یعنی کوئی الہ۔ اس طرح میں یہ لکھوں گا الہن، شاباش، یہ کیا ہوگا؟ الہ۔ اب ان سے میں یہ بتاؤں گا، اس کے ساتھ میں نے کیا لگایا؟ الف لام۔ اس کے ساتھ میں الف کو یہ لگاؤں گا تو یہ الف گر جاتا ہے، یہ حروف شمسی ہے نا۔ میں نے بتایا شمسی اور قمری حروف بتائے آپ کو؟ نہیں بتائے؟ نہیں بتائے؟ تو یہ الف گر جائے گا۔ جب یہ الف گر جائے گا تو یہ دو الف لام لگ جائیں گے اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ۔ تو یہ پراپر، یہ کامن، یہ پراپر۔ تو اللہ کا نام یہی ہے اور اس کی جمع نہیں ہے اللہ کا نام۔ یہ اللہ کا نام ہے جو ہم اس طرح لکھتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کا نام کیسے آیا ہے تو آپ یہ کہیں گے یہ الہن، الہن، الہن سے جب ہم نے ال لگا دیا، اس کی مثال آپ کو، ہم مثال کے طور قلمن تھا تو میں کہوں گا القلم، القلم، العین، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح الشجر، اسی طرح القمر، کیا ہوگا؟ یہ قمرن، قمرن سے کیا ہو گیا؟ القمر، ال لگا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ هو اللہ، یعنی اس کو ہم نے اسی لیے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کس طرح یعنی نام آتا ہے۔ تو ہم کہیں گے وہ اللہ کیا ہے؟ احدن ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے نا، احدن، احدن اس طرح ہے نا، یہاں بھی احدن ہے، یعنی کیا مانے؟ یکتا ہے، یونیک ہے، یعنی یکتا ہے۔ یعنی کس طریقے سے؟ یعنی ہر لحاظ سے وہ یکتا ہے، یعنی کس جگہ سے بھی دیکھیں، کامن طریقے سے جہاں جہاں دیکھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر معاملے میں کیا نظر آئے گا؟ اکیلا نظر آئے گا، کہ نہ وہ خالق کے اعتبار سے، رازق کے اعتبار سے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جی ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ کو جو سوٹ کرے صبح کا زیادہ بہتر ہوگا، 9 بجے یا رات کو 10 بجے کے بعد۔ اور اگر عصر میں آتے ہیں، عصر مغرب میں آتے ہیں تو پھر مجھے فون کریں گے کہ عصر میں آ رہا ہوں۔ تو پھر
सकते हैं 8 बजे 9 बजे इस तरह। अच्छा, तो कितने बजे आ सकते हैं? हाँ हाँ, तो कब आएंगे 10 बजे? कल 10 बजे तो मैं नहीं हूँगा ना, तो असर में आ सकते हैं 5-6 बजे? नहीं आ सकते। तो बहरहाल आप आ जाएं घर में तो कोई ना कोई आपको मेडिसिन दे देंगे, ठीक है? आप 10 बजे भी आएंगे, मैं ना भी हुआ तो आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है, मालूम है। सही है? नहीं, बाकी नहीं, हमारे पास बिल्कुल पेवर हर्बल है। ठीक, ओके, ठीक। अच्छा, कि ये अल्लाह जो है हर लिहाज से क्या है? किस लिहाज से? राज़िक होने के एतबार से, खालिक होने के एतबार से, यानी हर लिहाज से वो उसका कुल था। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लाह की तारीफ करो तो आप कैसे करेंगे? आप तारीफ नहीं कर सकते, अल्लाह को आप नहीं ले सकते। अल्लाह ने अपनी तारीफ आयतुल कुर्सी में खुद कराई है। आपको याद है ना आयतुल कुर्सी क्या है? अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये अल्लाह जो है इसके अलावा कोई भी इबादत के यानी वहाँ भी अहद है। आगे क्या है? अल हय्य, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, और वो खुद कायम है और पूरी कायनात को उसने कायम किए हुए हैं। तो ये उस लिहाज से भी क्या है? अहद है, इसका मुकाबला कोई नहीं है। अब आगे क्या है? ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है और ना उसको, इस लिहाज से ही अल्लाह ये क्या है? ठीक है, आगे क्या है? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है उसकी है, वो यहाँ पर भी अहद है, यकता। इसी तरह आगे क्या है? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, वो जब हर चीज़ से वाक़फ़ है, यानी हर जगह वो मौजूद है, हर एक की ज़िंदगी के बारे में, ख़यालात के बारे में, वो दिल के अंदर वसवसों से वो वाक़फ़ है, तो फिर कौन सी शख्सियतें जाकर उसके यहाँ सिफारिश कर सके? उसको सिफारिश तो उसकी होती है ना। मसलन मैं अगर आप किसी को वहाँ से भेजूँगा कि जनाब मैं सिफारिश करता हूँ नाज़मा को कि नाज़मा इसको ज़रा ये काम दे दो या ये इसके साथ हेल्प करें, तो नाज़मा को तो नहीं पता है मैं क्या करूँ, सिफारिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं अल्लाह ताला को कहूँगा कि मैं सिफारिश कर रहा हूँ, मैं आपके पास भेज रहा हूँ, तो अल्लाह कहेगा तुम्हें ज़्यादा पता है या मुझे ज़्यादा पता है? इसलिए अल्लाह के पास सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर एक को जानता है। तो ये हर एक को जब जानता है वहाँ भी वो क्या है? आगे क्या लिखा है आयतुल कुर्सी में? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ, वो इस हद तक जानता है जो आपके सामने हो और जो आपके, यानी वो आपके मुस्तकबिल के आने वाले हालात को भी जानता है और आपके माजी के सारे वाक़यात को कौन जानता है? तो यहाँ वो क्या है? या ऐसा कोई है जो आपके माजी को जानता है या आपके मुस्तकबिल के बारे में कह देगा कि मुस्तकबिल में होने वाला नहीं, ये अल्लाह ही कहे, ये अहद है। आगे क्या है? यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, यानी अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जो है वो इतना वसी है, अपने इल्म में भी क्या है? अहद है, कि उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता। आगे क्या है? हाँ, आगे क्या है? वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, और तमाम कायनात के ऊपर उसका बराह रास्त क्या है? कंट्रोल है, यानी उसकी इक़्तिदार की कुर्सी छाई हुई है हर जगह, यानी उसके कंट्रोल से कोई चीज़ बाहर, तो यहाँ भी क्या है? आगे क्या लिखा है? वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और आज तक इन दोनों की, आसमान और ज़मीनों की निगरानी करने में ज़रा भर
थकावट, तो हम अगर थोड़ा सा काम कर लें तो हम 24 घंटे, उनका दरवाज़ा 24 घंटे खुला, हम 24 घंटे अगर सोएंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे? वो कहीं भी सोता नहीं है, उसका 24 घंटे दरवाज़ा खुला है, तो किस लिहाज से वो क्या है? तो गोया कि अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लाह की तारीफ क्या है, तो यू विल हैव टू गो टू आयतुल कुर्सी। बस आप कहीं आयतुल कुर्सी समझो, पढ़ो, बस ये अल्लाह ताला की क्या है? तारीफ है। इस लिहाज से वो अहद है। अब ये अहद किस तरह है, कहाँ का है? अल्लाह, ये अल्लाह जहाँ अकेला है हर लिहाज से, वहाँ वो क्या है? बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज, वो सबसे बेनियाज है, लेकिन हम उसके नियाज़मंद हैं। वो किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन पूरी कायनात उसकी मोहताज है। इसमें ये समझ आई बात? अब दूसरे हद में क्या है? लम यलिद, लम नहीं जना है, ना उसने जना है, वलम यूलद, और ना वो जना गया है। ये बात समझ आ रही है आपको बात? ये वलद से है, वलद, वलद, वलद के माने क्या होते हैं? वालिद, वालिदा, विलादत, तौलीद, मिलाद, मौलूद, ये लफ्ज़ इसी से, यानी अल्लाह ताला इस तरह कहीं नहीं है। न उसकी विलादत हुई है, ना उसका मिलाद मना सकते हैं, ना उसकी वालदा है, ना उसका, और ना वो किसी का वालिद है, ना वो किसी का। तो इस लिहाज से वो यहाँ पर भी हद है। क्लियर हो गया? अब आगे ये है, इसके बाद कहा गया वलम यकुल, और नहीं, कुन के माने कुन, कुन फयकुन, क्या माने? होना। तो इसका माने नहीं हो सकता है और ना हो सकेगा, लहू, उसके लिए। ये मैंने कहा लहू, आपने देख लिया लहू। अगर मर्द औरत होती तो क्या होता? लहा। और अगर दो हो जाते लहुमा, और अगर बहुत सारे थे लहुम, और अगर बहुत सारी खवातीन हो जाए लहुन्ना। ये आपको देखें, याद हो लहू, यानी उसके लिए। कुफू, कुफू के माने, अच्छा ये कुरान मजीद में एक बार आया है लफ्ज़, और ये भी एक लफ्ज़ आया। कुफू के माने हम सर, हम पला, बराबर, ठीक है जी, बराबर, हम सर, अहद, कोई एक, कोई एक भी उसका बराबर नहीं है, उसका हमसर नहीं है, और उसके मकाम को कोई पहुंच नहीं सकता है। तो ये सूरत अखलास है जो आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अहद पे शुरू हुआ था और अहद पे, तो इसको देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर रब्त है। अगर हम कुरान मजीद को इस पैराए में देखेंगे तो कुरान मजीद खुद एक तफसील है, एक मुफस्सल कलाम है, लेकिन इस मुफस्सल कलाम को हम समझने की कोशिश नहीं करते। अब देखिए कितनी ज़िंदगी हम लोग गुजर गई। आप तो खैर बच्चे हैं, लेकिन ये हमारी उम्र में जो लोग हैं उनको भी ये नहीं आता, ये सूरत नहीं आती। जहाँ जहाँ मैं मस्जिद में जाता हूँ, उनको समझाता हूँ, फिर पता ही नहीं पता है। उधर प्रोफेसर होगा, उधर जनाब लेक्चरर होगा, उधर जनाब कोई प्रिंसिपल होगा, उनको कोई पता नहीं ये क्या है। यानी कुरान मजीद से हम इतने दूर हो चुके हैं कि हमें बताया ये गया है कि कुरान को सिर्फ सवाब की खातिर पढ़ा करो, इसको ख़त्म जितना हो सके करते रहा करो, समझने की कोशिश मत करो। ये तो आप लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि कुरान की फ़िक्र के लिए आप जमा हो रही है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको पता नहीं होता। वो ये कहेंगे हमारे घर आ जाओ और 10 मरतबा कुरान ख़त्म करो ताकि हमारा फ़लाँ काम हो जाए, ये कर दो वो कर दो, लेकिन कुरान को समझने के लिए कोई तैयार नहीं, और न इसकी क्लासेस हो रही हैं।
ना आपकी स्कूल में क्लास हो रही है, ना कहीं और हो रही है। बोर्ड पे कहीं कुरान को लाया नहीं जा रहा। जब बोर्ड को कुरान नहीं लाया जाएगा बोर्ड पर, तो फिर कैसे समझ आएगा? इसलिए हमने कोशिश की है कि बोर्ड पे ला करके एक एक लफ्ज़ को वजाहत से बता दें, ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए और आप लोगों को ये पैगाम सुनाने के काबिल हो जाए। तो आज के सबक में कोई मुश्किल आपको लग रहा है? कोई लफ्ज़ हो जो आपको समझ ना आ रही, कोई बात ऐसी हो जी, मुश्किल है जी बेटा? अब इसको हमने पढ़ा है अल समदु। क्यों पढ़ा है? समदुन नहीं है, इसके साथ क्या लग गया? अलिफ लाम लग गया। इसलिए अलिफ लाम लगने से क्या हो गया? अब देखें ना, ये जब लाम लग अलिफ लाम लगेगा हमेशा के लिए, तो ये प्रॉपर कर देता है। अब इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हर लिहाज से वो क्या है? बैनियात है। तो इसको आप देखेंगे तो अब आप समझ गए कि हुआ का जो ज़मीर है ये मुअन्नस के लिए क्या है और मुज़क्कर के लिए क्या है, ये जमा के सीगे में क्या है और जमा के सीगे में मुअन्नस के लिए क्या है, ये आज आपको पता चला है जी। कोई सवाल नहीं है? समझ आ गई? फिर इंशाल्लाह आइंदा की क्लास में हम क्या करेंगे? सूरह लहब। लहब है ना, ये पीछे हम आ रहे हैं ना, हम नास की तरफ से आ रहे हैं। सूरह फलक हो गई ना, क्यों? फिर उसके बाद क्या होगी? ये हो गई। अब उसके बाद सूरह लहब पढ़ेंगे। अब लहब, लहब किसको कहते हैं? ये अबू लहब है। अबू लहब सुना होगा। इसका अपना नाम क्या है? इसका नाम है अब्दुल उज़्ज़ा। क्या नाम है इसका? ये लहब के माने कहते हैं कि उसके चेहरे से नूर के शोले निकलने की वजह से, यानी इतना खूबसूरत इंसान कि जिसके चेहरे से नूर निकल रहा हो उसको लहब कहते हैं, यानी आग का शोला जिसे कहते हैं। तो ये अल्लाह ने पैदा किया था, अल्लाह ने अपनी तख्लीक को सामने रख करके उसका नाम लगाया है। वरना उसका नाम क्या है? अब्दुल उज़्ज़ा के माने बुद्ध का एक बहुत बड़ा बुद्ध था उज़्ज़ा, उसका ये नाम है, बंदा था, गुलाम था उसी का। तो अल्लाह तबारक व तआला शिरकिया नाम कुरान में नहीं इस्तेमाल करता, इसलिए उसका नाम क्या लगाया? लहब। लहब, अबू लहब। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम आइंदा की क्लास में आकर पढ़ेंगे। आप कोशिश करें कि उस अबू लहब को अच्छी तरह याद करें कि तब्बत यदा अबी लहब क्या है, हाँ, ये क्यों आए, अल्फाज क्या है, इसमें बार बार गौर करें। लेकिन आज का जो सबक आपने पढ़ा है इसको अपनी कॉपी में नोट करें और कोशिश आप ये करें कि राइटिंग सीखें। राइटिंग के लिए ये करें, ये बोर्ड आपके पास ही होता है, इसको मिटाया करें और इस पर अपने प्रैक्टिस करें और अपनी कॉपियों में ये कलम जो है वो मार्कर इस्तेमाल करें। वो नहीं होता है बच्चों के लिए मार्कर करें, एक इस तरह एक मार्कर होता है कट मार्कर, उस कट मार्कर को ले लें और एक ऐसी कापी ले लें जिसमें स्याही ना फैले, उसके ऊपर अपनी राइटिंग करें। जब तक आपको राइटिंग नहीं आएगी आप बोर्ड पे नहीं आ सकेंगे। बोर्ड पे आने के लिए आपको राइटिंग का और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना बड़ा जरूरी है। तो मैं आपकी हर तरह कोशिश करूँगा कि आपकी ट्रेनिंग हो जाए, तरबियत हो जाए और आप इन मोहल्लों के अंदर जहाँ जहाँ बोर्ड लग जाए, अब जितने आप ख़वातीन जमा हैं, बच्चियाँ जमा हैं, ये अगर हर जगह पे अपने अपने घर में बोर्ड लगा दें और अपने घर में ही तालीम शुरू कर दें तो घर वालों को कितना फ़ायदा होगा। तो इसलिए इस काम को करना। दर्स कुरान अगर मैं दे देता ना आपको, तो दर्स कुरान में दे सकता हूँ, मेरे लिए क्या मुश्किल है, लेकिन दर्स कुरान में ये चीज़ें आपको मैं समझा नहीं सकता। बोर्ड के ऊपर क्या होता है, हर चीज़ क्या हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है। अब आप जब देखेंगे कि ये लफ्ज़ क्या है, ये लफ्ज़ क्या है, ये वलदा कैसे आया, ये कैसे आया, तो इस तरीके से जब बोर्ड पे सारी चीज़ें आ जाती हैं तो बोर्ड पे समझाना मेरे लिए भी आसान, आपके लिए समझना भी। अब इस वक्त आप जब दर्स कुरान सुनते तो आप दर्स कुरान सुनने के नतीजे में आप इस कान से सुनती, इस कान से निकाल, लेकिन इस वक्त आप कान से सुन भी रही हैं, आँखों से और दिल दिमाग में बैठा भी रहे और आप सवालात भी करती हैं। तो
گویا اس پروگرام میں ہم سب کے سب کیا ہے؟ شریک ہے. لیکن درس قرآن میں جسٹ یو آر لسنر. آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ سننے والے تھے. اور سننے کے بعد سن ہو جاتے. پھر سمجھا نہیں سکتے. یہاں پہ آپ صرف سن نہیں ہوں گے بلکہ آپ کیا ہوں گے؟ الرٹ ہو جائیں گے. آپ سب کو سمجھانے کے قابل ہو گے. قرآن مجھے تو آتا ہے سب. اب آپ سے پوچھے اللہ کیسے آیا ہے، نام کیسے آیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ الہ کے ساتھ بس. اسی طرح عین کس کے ساتھ الف لام لگائیں کیا ہو جائے گا؟ العین. اور اگر کتاب کے ساتھ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب ال لگ جائے گا تو آپ اس کو یہ سمجھائیں گے کہ بھائی ہاں جی. اچھا آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ حروف شمسی حروف قمری تو بتائی. کیا ہے حروف قمری؟ کیا ہے؟ آپ نے جملہ بتایا تھا وہ یاد ہے نا آپ کو؟ تسی یاد کرو نا. آپ یاد کریں نا. حق کا خوف. اب ان میں سب میں سے ایک کو پتہ چلا، باقی کو نہیں پتہ. اب آپ بتائیں کیا یہ کیا میں نے بتایا تھا؟ کیا وجہ اس کی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا بتا؟ کیا وجہ تھی؟ نہیں میں نے کیوں بتایا؟ ہاں کیوں؟ کس مقصد کے؟ ایسے خواہ یاد کر. خواہ یاد کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹائم ہے نماز میں 15 منٹ. اب دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں، اس کو مٹاؤ. یہ دیکھیں ذرا، یہ بورڈ کی طرف دیکھیں نا. یہ دیکھیں الف سے لے کر